So the topic for today's class is geometric mean. So geometric mean, you can say it is the nth root of the product of n values of a series. Say if you have n number of values, ठीक है, अगर आपके पास n number of values है तो आप उसका nth root लोगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सिर्फ दो values हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a and b are two such values, तो वहां पर आप उसका स्क्वायर रूट लोगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज हैं. सो एज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यूज यू आर गोइंग टू टेक द रूट, ठीक है. तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है इट इज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट of the n values of a series. So as many as values you will be having, you will have to do the n, you will take the nth root, ठीक है. उसी तरीके से अगर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं a, b एंड c, ठीक है, तो वहां पर हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे क्योंकि वहां पर तीन वैल्यूज हैं, तो तीन वैल्यूज के लिए हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है. तो जैसे भी आपके पास वैल्यूज बढ़ते जाएंगे, so it is written and it is very clearly written here that it is the nth root of the product of n values of a series. So as many as values you will be having in any such series, you will be taking out the nth root of that according to the number of values. So symbolically, or you can say one problem could arise अगर हमारे पास n number values है. Will that be okay if we have 40 or 50 values? Doing the product is okay, ठीक है. आप किसी भी 50 वैल्यू का प्रोडक्ट तो निकाल सकते हो, देन उसके बाद उसका nth रूट निकालना, ठीक है, 50th रूट निकालना उसका, that will be a kind of clumsy task. So in order to reduce that task, we can take the help of this particular formula. So it is written just like the same. It is the nth root. As you can see, it is the nth root of n values, product of n values. We have done the product also, और उसका nth root भी निकला है. So either you can do like this, but if there are not many values, then it would be a problematic kind of thing. So you can take this formula, ठीक है, anti-log summation of log x upon n, ठीक है, and you can represent this geometric mean with the symbol gm only, ठीक है. जैसे हम लोग हार्मोनिक मीन में hm लिखते थे, उसी तरीके से यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन में सिर्फ हम लोग gm लिख देंगे, and this anti-log summation of log x upon n. So as we had done previously with previous concepts, हम लोगों ने यूनिवेरिएट सीरीज पे देखा था. So यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी सीरीज होंगी? Exactly the same. इंडिविजुअल सीरीज पे बात करेंगे, फिर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे बात करेंगे, and thirdly we'll be talking on the continuous series. So the formula that would follow over here for calculating individual series will be the same, okay? This is the formula. Gm is equal to anti-log summation of log x upon n, okay? This will be the formula for calculating your geometric mean. So let's do one such question on that basis. And I told you children to bring your log and anti-log tables with you. Did you all have that? Do you all have that with you right now? All right. According to the formula, what do we require now? इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या चाहिए? यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला में देखोगे, we require two things. हमें log x पहले निकालना होगा, ठीक है, और उसके बाद n. n represents the same. इंडिविजुअल सीरीज में n क्या होता है? नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है. सो वी ऑलरेडी नो एंड वी कैन कैलकुलेट दैट आल्सो कि कितने हमारे पास आइटम्स है या कितने ऑब्जर्वेशंस हैं. और यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो चीज निकालनी है दैट विल बी ऑफ log x now, ठीक है. वी आर गिवन विद द वैल्यूज x and will make another column for finding out log x.
So just tell me what is the value of log 50. Do it very quickly children. Log x का कॉलम बनाते हैं. So what is the value of log x? Log 50. Log 50, what is the value? Some child can find out the value of log 72 and rest others. Okay, 1.698. So I am just putting this value 1.698. Next, log 72 कितना हो जाएगा? 1.857. All right, next value, that is log 54. All right, next one is log 82. All right, log 93. 1.9685. All right, we have the values of log x with us. So what do we require according to the formula? अगर आप formula देखेंगे तो हमें क्या चाहिए होता है? We require summation of this. Just quickly do the summation now. All right, we have got the summation of log x also. Okay, so and what do we require? N we have of 1 2 3 4 5. N भी हमारे पास है. Let's put the things in the formula. Formula is like this: gm is equal to anti-log of summation log x. Summation log x कितना था? 1710, and divide by how much values we have? We have 5 values. So what will be the division part? Divide this 9.1710 divide by 5. What it would be? 1.8342. All right. So we have the values, and now just calculate the anti-log of this value. Anti-log of 1.8342. Is this the value coming, children? 60.68.26. Is this the value? So, and this particular portion, calculation of geometric mean in individual series. Is it clear, children, now? Is it clear? So, all right, let's proceed further with the discrete series now. Okay?
अब हम डिस्क्रीट सीरीज पे चलते हैं. डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बट देयर विल बी अ स्लाइट डिफरेंस. ठीक है, यहाँ पर log x के साथ साथ आपको मल्टीप्लाई करना होगा f को भी. ठीक है, f into log x. एंड इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, दिस n का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन डिस्क्रीट सीरीज. ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज में n का मतलब होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. सो हियर we will be making the columns according to this. So I'm just making columns according to this. If you are clear with the formula, then you can make the columns accordingly. So what do we require? सबसे पहले तो log x चाहिए होगा, फिर हमें चाहिए होगा f into log x. ठीक है, so only two columns are required. That is log x and f into log x. And I have copied the values from the previous question only. So need not to do it again because you know how to calculate the log part. ठीक है, आपको मालूम है. I'm just copying the things from here. So next is, what do we require? We require the f into log x only. ठीक है, just do the calculations now children. F into log x. Yes, this would be 14.6. Next value, this will be 37.146. Next value will be next value children. So all right, we have all the values with us, but for proceeding with this question, we require the summation of f into log x. So quickly do the summation part of this. What will be the summation of this? So now we can put the values in the formula. We have got both the values. हमारे पास f की वैल्यू भी है. ठीक है, f का मतलब यहाँ पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है. ठीक है, so we have n with us, we have this value with us. Let's put in the formula, that is gm is equal to anti-log
Quickly divide this, children. Quickly divide. One 1.8738. All right. So what do we do next is calculate the antilog of this value. Okay? Antilog of 1.8738. Student, did you calculate this antilog of 1.8738? All right, this is coming to be 74.78. So this is the geometric mean for this value. ठीक है? How you can interpret? इसको आप interpret कैसे कर सकते हो? It is the nth रूट. nth रूट का मतलब क्या होता है? 150th. एन यहाँ पर हमारा 150 निकला था. ठीक है? So this is the 150th root of the multiplication of these values. ठीक है? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इन सारे वैल्यूज का और इसका 150th रूट निकालोगे, then this will be the answer. ठीक है? And this is what we call as geometric mean. ठीक है? So this is how you can interpret this value also. So next, if we are clear with this, then we can go ahead with the continuous series. All right, continuous series will also be seeing the functioning the same way जैसे हम लोगों ने discrete series में देखा है. Continuous series में children यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स आपको मिलेंगे. ठीक है? तो बस एक स्लाइट डिफरेंस होगा, दैट विल बी ऑफ दिस. ठीक है? वहां पर log x लिखा था, यहाँ पर हम लोग log m लिख रहे हैं. m का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू. ठीक है? तो हम लोग सबसे पहले क्लास इंटरवल्स में से हम लोग पहले m निकालेंगे, दैट इज मिड वैल्यू निकालेंगे, और जो वैल्यू आएगी उसका हम लोग log m निकालेंगे, और log m जब निकल आएगा फिर हमारी वो एकदम डिस्क्रीट सीरीज जैसी बन जाएगी, और उसको हम डिस्क्रीट सीरीज के तरीके से ट्रीट करके फॉर्मूला लगा सकते हैं. इज दैट क्लियर बेटा? So according to the formula only, I'm just making the tables for this. पहली टेबल बनेगी वो हमारे पास m की बनेगी. फिर दूसरी वाली जो कॉलम बनेगा दैट विल बी फॉर log m. फिर थर्ड कॉलम वुड बी फॉर f into log m. Just first of all write the formula and see कौन कौन से हमारे पास कॉलम्स नीडेड है. ठीक है? एज आई डिड उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं. जस्ट फॉर्मूला आप लिखिए और उसके साथ साथ यहाँ पे हम लोग मिड वैल्यू निकाल रहे हैं. मिड वैल्यू एवरीबडी रिमेम्बर्स द फॉर्मूला.
सभी को फॉर्मूला मिड वैल्यू निकालने का आता है। L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यस, ठीक है। 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, ठीक है। 30 डिवाइड बाई 2 इज 15, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। नाउ वी हैव गॉट दी m, ठीक है। और अननेसेसरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत भी नहीं है। फॉर एग्जांपल सम चाइल्ड डू दिस थिंग आल्सो कि m का भी हमने एडिशन लिख दिया। व्हाई यू आर डूइंग दिस? बिकॉज एज यू कैन सी इन द फॉर्मूला, कहीं पर भी m का एडिशन की जरूरत पड़ रही है, नहीं जरूरत पड़ रही है। डू नॉट कैलकुलेट अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट व्हाट डू वी रिक्वायर इज log m, ठीक है। log m का मतलब है log 5, बेटा कितना होगा जल्दी से क्विकली? 698. Next value log 15. Next value is log 25. Next value is log 35. Next value is log 45. So as you can see, it is nothing, just you should be knowing how to calculate the log values. ठीक है। सो वी हैव फाउंड दी log m। अब इसके बाद इसका एडिशन नहीं चाहिए, डू नॉट गो इन दिस, ठीक है। हमें एडिशन नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ चाहिए f इंटू लॉग m का चाहिए। सो वी विल बी कैलकुलेटिंग दिस थिंग, दैट मीन्स दिस कॉलम इंटू दिस कॉलम, ठीक है। सेकेंड कॉलम इंटू फोर्थ कॉलम f, और ये हुआ हमारा log m। So we'll be multiplying these two ones, ठीक है। Quickly do the calculation, student। f, sorry, 5 into 0.698, this will be 3.49. All right, next one it would be 8.232. Next value 15 into 1.397. 20.955. All right, next one is 25 into 1.544, 38.6. Next value 8 into 1.653, this is 13.224. So all right, we have calculated this thing. Now we need the addition of this column, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था just go write the formula first of all, और देखिए सबसे पहली चीजें क्या क्या चाहिए, किस चीज का हमें एडिशन चाहिए, उन्हीं कॉलम का एडिशन करिए। डू नॉट गो इन ईच एंड एवरी कैलकुलेशन, ठीक है। अपना टाइम सेव करिए और जिस भी चीज का हमें कैलकुलेशन चाहिए या जिस भी कॉलम का हमें एडिशन चाहिए उसको ही करिए, ठीक है। क्योंकि हमें log m की यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है। सो वी आर डूइंग दिस वे। हाउ मच दिस इज गोइंग टू कम चिल्ड्रन? इसका एडिशन कितना आ जाएगा? 84.501। This is going to be 84.501. So we have got the values, I think we have got both the values। f into log m भी आ गया हमारे पास, और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए थी? n चाहिए थी। n जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, दैट इज 60, ठीक है। लेट्स पुट इन द फॉर्मूला।
Divide this value, children. Hurry up. 84.501 divide by 60. ये कितना हो जाएगा? This will be okay. Good. GM is equal to 1.4083. All right. Calculate the antilog of this. Antilog क्या हो जाएगा इसका? 25.61 or 60. We can take this. ठीक है? So you have seen geometric mean सारे सीरीज में भी, इंडिविजुअल सीरीज में देख लिया, फिर डिस्क्रीट सीरीज में देखा, फिर आपने कंटिन्यूअस सीरीज में भी देख लिया. ठीक है? आई थिंक द कैलकुलेशन वाज बिट इजियर बिकॉज यू नो हाउ टू डू दी लॉग एंड एंटी लॉग पार्ट. ठीक है? अगर आपको लॉग पार्ट निकालना आता है और एंटी लॉग निकालना आता है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी इजी हो जाते हैं. ठीक है? एंड दिस इज व्हाई आई सेड इफ यू ऑल नो दिस थिंग so we can go ahead. So we have seen these things, and one more thing after we have done with all the parts. पहले हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, फिर हम लोगों ने हार्मोनिक मीन पढ़ा, फिर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लिया. अब देखते हैं इन तीनों में क्या रिलेशनशिप है. ठीक है? So now moving further with this particular topic, that is relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. ठीक है? पहला रिलेशनशिप क्या कहता है? अगर सारे के सारे आइटम्स इन अ सीरीज हैव द सेम वैल्यू. ठीक है? दैट मींस, कहने का मतलब क्या है? कोई ऐसी सीरीज दी हुई है, अभी हम सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. ठीक है? एग्जांपल के लिए हम कह रहे हैं एक ऐसी सीरीज है जिसमें जो वैल्यूज दी हुई है वो 2 और 2 दिया हुआ है. ठीक है? सो 2 और 2 का अगर आप सेम वैल्यू हो गई, एक सीरीज है जिसमें 2 और 2 ही वैल्यूज दी हुई हैं, और ज्यादा वैल्यूज होती तो भी आप चेक कर सकते हैं, बट फॉर मेकिंग आवर कैलकुलेशन इजियर आई एम जस्ट टेकिंग 2 वैल्यूज. अब इसका अगर आप मीन निकालोगे तो क्या आ जाएगा चिल्ड्रन? इसका मीन निकालते हैं, क्या आएगा? अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन यू नो ना, 2 + 2 डिवाइड बाई 2. ठीक है? हमारे पास 2 ही आ रहा है ना. अब इसका आप ज्योमेट्रिक मीन निकालिए तुरंत फटाफट. अभी हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखा है. इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? log 2 और फिर log 2 ऐड करेंगे और उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है? डू आई नीड टू शो यू हियर? कितना आ रहा है ज्योमेट्रिक मीन बेटा इसका? हाउ मच इज इट कमिंग? मस्ट बी 2. ये 2 ही आ रहा होगा. Then calculate the harmonic mean also children. इसका हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा? n ऊपर आ जाएगा and reciprocal of the values, that means 2 divide by 1/2 plus 1/2. 2 and 2 cancel हो जाएगा already and the answer will be 2. ठीक है? So all right, we will get the same values here. ठीक है? हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, here coincidentally
हमारा वैल्यू भी 2 था और हमारा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी 2 ही आ रहा है, ठीक है। इट नीड नॉट टू बी द सेम, जरूरी नहीं है कि आपका ये सेम ही आएगा, बट ये अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सेम आएगा। दिस इज वन सच कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक और रिलेशनशिप है जो कहता है, जरूरी तो नहीं है कि आपके पास सारे वैल्यूज सेम होंगे, ठीक है। इफ ऑल द आइटम्स in a series does not have the same value, then it will follow this relationship, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, आई हैव गिवन यू सम्स फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने के लिए दिया था, ठीक है। आई थिंक अभी हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस नहीं करे होंगे, सो व्हेन यू आर गोइंग टू ट्राई, ठीक है, तो आप देखोगे उस रिलेशनशिप में सबसे बड़ा जो वैल्यू आएगा वो अरिथमेटिक मीन का आएगा, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आएगी और उसके बाद हार्मोनिक मीन की आएगी, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप। हमेशा आपका जो भी अरिथमेटिक मीन है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है देन कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशंस गलत है। एंड देयर इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई कैन से रिलेशनशिप, ठीक है। आप बहुत जगह पर आपको दो चीजें वैल्यू आपको निकाल रहे हो, ठीक है। सपोज आपने अर्थमेटिक मीन निकाली और हार्मोनिक मीन निकाल लिया, देन if you are asked for calculating the geometric mean, need not to go for that calculation, just do with this particular formula, ठीक है। आप इस फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन निकला हुआ है, अरिथमेटिक मीन निकला हुआ है, देन हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। एंड सेम विजावी यहाँ पर अगर आपके पास हार्मोनिक मीन निकला हुआ है और ज्योमेट्रिक मीन निकला है तो आप अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो। सो कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई भी दो आइटम्स दिए हुए हैं, देन यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड do your calculations, ठीक है। I'm just highlighting this formula so that it becomes more clear to you. So I think we have done each and every concept related to geometric mean, as well as we have seen the relationship which follows between the three concepts. If there are any queries, please write in the chat box. If it is already understood, then also you can say, yes, ma'am, we have understood. Or if there is any query, please write in the chat box, children. So many of you are saying, yes, ma'am.